کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ کھانے سے جسمانی درد ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی قائم رکھنے کے لیے دودھ میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پی لیں۔ نہار منہ ادرک کا رس پینے سے ہڈیاں مضبوط اور جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں اگر کالے ہو جائیں تو دال چینی اور لیمبو کا رس ملا کر لگائیں۔ زیادہ سونے والے لوگ جلدی موٹے ہو جاتے ہیں۔ معدے کی کمزوری کے لیے سابودانہ دودھ میں پکا کر کھائیں۔ بادام کا تیل جلد کے مردہ خلیے ختم کرتا ہے، کیل محاذ سے دور کرتا ہے اور ہونٹوں کی خشکی ختم کرتا ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ 2-3 کھجور کھا کر اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کمزور معدے والے افراد کو کیلا نہیں کھانا چاہیے۔ جوڑوں اور ٹانگوں کے درد کے لیے بھنی ہوئی ادرک کھائیں۔ زیرہ آپ کی جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی صورت میں ہرڈز کا مربع استعمال کریں۔ روزانہ کھیرے کا استعمال آپ کی سانس کی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں میں درد اکثر پانی کی کمی کی علامت ہوتا ہے۔ خواتین کا موٹاپا ان کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 2 سے 3 لہسن کے جو لیمبو کے ساتھ پانی کے ساتھ کھانے سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ امرود کے مسلسل استعمال سے رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے گردے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چھینک کو روکنے سے آپ کی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ خواب کے اندر میٹھا پھل دیکھو جان لو خوبصورت ہونے کی علامت ہے۔ لیمبو پانی پینے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ طوطے کی آواز سننے سے آپ کی قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ درخت اور پودوں کے پاس زیادہ رہنے سے جسم کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ اپنا مسائل دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے آپ کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے کی مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کی سیاہ رنگ نکھر جائے گی۔ ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے معدے کو ہضم کرنے میں زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ ٹھنڈا پانی گلے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کی روانگی کو متاثر کرتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو چبا کر کھا لیں۔ نصف گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیں۔ کچھ عرصے کے بعد چہرے پر سرخی جھلکنے لگے گی۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آپ کے دانت جلدی گرنے لگتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے جرقان کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ سفر پر روزانہ جانے سے قبل ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر کھا لیں۔ گیسٹرول کی وجوہات کو کم کرتا ہے۔ گھر میں تتر اور بٹیر رکھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا گھر بنا لے اس گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ امرود کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہوتا ہے۔ کھانے والی چیز کھڑے ہو کر مت کھائیں، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے تو جان لو تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے اسے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت لہسن کو اپنی زبان پر رکھ لو، زبان پہ چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کو آدھا گھنٹہ چلنے سے معدے کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے میں برکت اڑ جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے بوڑھے نہیں ہوں گے آپ۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے گھٹنوں میں شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئے میں کام کرنے والی عورتوں کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو کھانے کے بعد 1 امرود کھا لیں۔ ایک چاکلیٹ دوسرا کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں یورین میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ روزانہ 1 انجیر کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری موت قریب ہے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ ہونے کے بعد نشانات پڑ جاتے ہیں۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگانے سے داغ اور دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے سے آپ کو جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے۔ پیٹ میں درد ہے تو الٹا لیٹنے سے آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے افراد کشمش کھائیں۔ کسی بھی چیز کو غور سے روزانہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ کھجوریں زیادہ استعمال کریں۔
खजूर खाने से हड्डियां कमज़ोर नहीं होती। ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे साफ रहते हैं, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर में पीले रंग की लाइट लगाने से नज़र कमज़ोर हो जाती है, इसलिए सफ़ेद रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का इस्तेमाल रोक दें और ज़्यादा केले खाएँ, क्योंकि केले में पोटाशियम होता है जो नमक के असरात को कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। प्याज और चिकन को पानी में उबालकर इसका सूप पीने से आपका वज़न बहुत जल्दी कम होता है। पेट भर कर खाना खाने वाले अफराद को लाइलाज गैस्ट्रो की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। खून की कमी को दूर करने के लिए बकरे की कलेजी पर काला नमक लगाकर खाएं, इंशाल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी। सोने के बाद नींद और सुस्ती महसूस हो जो दिमाग की कमज़ोरी की अलामत है। देसी घी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में ताकत और मजबूती आती है और आप जिस्मानी दर्द भी ख़त्म हो जाता है। जो मर्द और ख़वातीन अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहती हैं वो चेहरे पर टमाटर का रस लगाएं, इससे आपका चेहरा साफ़ होकर निखर जाएगा। जिस घर में बकरी जुड़वा बच्चे दे वहाँ रिज़्क़ की कभी कमी नहीं आती। दुनिया के आधा से ज़्यादा लोग ज़िंदगी जीने की उम्मीदें और अपनी कीमती ख्वाहिशें इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। घर में हफ्ते में एक दिन मछली पकाकर खाने से बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। कोई भी अहम फैसला करना हो तो शाम 5 से 7 बजे के दरमियान का वक्त बेहतरीन है, क्योंकि इस वक्त दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जिस्म में तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। कान में खारिश यादाश्त की कमज़ोरी की अलामत है। बालों की खुश्की दूर करने के लिए एलोवेरा को पानी में मिलाकर सर को धोएं। कलवंजी का तेल दूध में डालकर पीने से थकन और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मुंह का जायका कड़वा हो तो वक्फे से इलायची चबाते रहें। माश की दाल के लिए माश की दाल इस्तेमाल करने से सफ़ेद दाग ख़त्म हो जाते हैं। रात के वक्त ज़्यादा चावल खाने से पेट की चर्बी बढ़ती है और शाम के बाद चावल ना खाएं। दांत में ठंडा गर्म लगे तो नमक वाले पानी से गरारे करें। नहाने से पहले पेशाब कर लेने से आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं। ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ सकती हैं। रंग साफ़ करना है तो रात को चेहरे पर दही लगाकर सो जाएं। तजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज़्यादा ना खाओ। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन का इस्तेमाल करें, इससे बदहज़मी भी दूर हो जाएगी। तेज़ ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। रात के वक्त ठंडे पानी का इस्तेमाल हरगज़ नहीं करना चाहिए, ये घुटनों में दर्द की वजह बनता है। ज़्यादा खाना वाला बंदा हमेशा बीमारियों की ज़द में रहता है। जो बंदा मुसीबत में घबरा जाता है वो कभी मुसीबत से आज़ाद नहीं हो सकता, इसलिए कि मुसीबत में कमी आने की बजाय मुसीबत बढ़ जाती है। जो बंदा तालीम हासिल करने की मुसीबत को बर्दाश्त नहीं करता वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, वो हमेशा छोटे का छोटा ही रह जाता है। नहाने से कबल एक केला खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाता है। रोज़ाना नहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से आपका चेहरा हमेशा साफ़ रहता है। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। नहाने से पहले ज़ीरा और सौंफ खाओ, चर्बी तेज़ी से कम होगी। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है। रोज़ कड़वा तेल सर पर लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा ज़िंदगी भर बीमार नहीं होता। अचानक बुखार हो जाए तो मेथी का पानी पीने से बुखार फौरी तौर पर उतर जाएगा। ज़्यादा अंडा खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। गंदम की खुशबू सूंघने से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जिन्हें भूख ना लगती हो वो नहार मुँह खीरा खाए, भूख इंशाल्लाह लगेगी। जिन्हें सांस फूलने की शिकायत है वो आड़ू और फल ज़्यादा मकदार में खाएं। आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत से आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। टूटी हुई प्लेट या बर्तन में खाना खाने से नाहुसत आती है, इससे परहेज़ करें। बकरी का दिल पकाकर खाने से आपके दिल में सुकून और आराम आता है। बाल गिरने की शिकायत है तो पान के पत्ते हफ्ते में 2 बार सर पर मसलें, बाल गिरना रुक जाएंगे। गुड़ खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। ज़्यादा पेशाब आने की शिकायत है तो भुने हुए चने एक मुट्ठी खाकर थोड़ा सा ऊपर से गुड़ खा लें, मसला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बालों में खुश्की दूर करने के लिए एलोवेरा को पानी में भिगोकर फिर इसको लगाएं। नज़र बेहतर करने के लिए शकरकंदी नहायत मुफीद है, ख़ासकर धुंधला नज़र आने वालों के लिए। शहद और दालचीनी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ़ हो जाता है। ये एक बेहतरीन मास्क है। आहिस्ता आहिस्ता खाने से आपका वज़न कम होता है। तेज़ी से खाने से आपका पेट फूल जाता है। जिस जगह से खून निकले जाए चाय की पत्ती
डाल कर दबा दें, खून बहना रुक जाएगा। चाय और कोल्ड ड्रिंक छोड़ने से आपके मैदे के आधे से ज़्यादा मसाइल अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। मैदे के मसाइल के लिए अंगूर बहुत ही फ़ायदेमंद है। खांसी के लिए रोज़ाना नहार मुँह 3 ग्राम खसखस खाएँ। सोने से कबल नीम गर्म पानी से डिप्रेशन और बेख्वाबी आपकी ख़त्म हो जाती है। अनार का जूस पीने से पेट की चर्बी गलने लगती है और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में आ जाता है। अगर कान में पानी चला जाए तो सफ़ेद प्याज का रस डालें और इससे दर्द नहीं होगा। नहार मुँह कच्चा केला खाने से आपके वज़न में तेज़ी से कमी आती है। ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो चुकंदर खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। जिस घर में काली बकरी मौजूद हो वो घर बदनज़री से महफूज रहता है। अगर बाएं करवट सोते हुए डरोने ख्वाब आएँ तो ये घर में जादू की एक वाज़िया अलामत है। ख्वाब में सब्जियां देखना बीमारी से शिफा पाने और दुखों से निजात मिलने की एक निशानी है। सुबह सवेरे उठकर सब्ज़ चीज़ों को देखने से आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। नापाकी की हालत में खाना पकाने से घर में गुर्बत आती है। अगर छोटी आंत में मसला हो जाए तो ठंडे मशरूबात से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। जली हुई जगह पर सरसों का तेल लगाने से छाले नहीं पड़ते। रात को वॉशरूम जाकर फारिग होकर सोना चाहिए, इससे आपके गुर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे। हरड़ का मुरब्बा खाने से पेशाब की तमाम तकलीफ़ दूर हो जाती है। जिन औरतों की स्किन ऑयली होती है उनको रोज़ वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इससे उनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज़र मिलेगा जिससे उसकी स्किन और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। जो लोग चाहते हैं उनका चेहरा हमेशा तरोताज़ा और फ्रेश नज़र आए तो वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लाजमी लगाएं। बैंगन का पराठा बनाकर खाने से खून की कमी जल्दी पूरी हो जाती है। दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव ख़त्म होता है। ठंडी चीज़ें खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है और नीम गर्म पानी पीने से आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। दूध में सेब का मरबा शामिल करके पीने से आपका चेहरे पर निखार आ जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ठंडे कमरे में सोने से आपका वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर बदन में सूजन का कोई भी मसला है तो लौकी का सालन बनाकर खा लें, इससे बदन की स्वेलन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता है उसको दूर करने के लिए चावलों वाले पानी से अपने चेहरे को धो लें। जो औरतें वज़न कम करने की ख्वाहिशमंद हैं सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। कलवंजी 250 ग्राम, काला ज़ीरा 250 ग्राम, गंधक डंडा, इनको पीस कर महफूज कर लें। सुबह शाम 2 ग्राम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। पड़े हुए पेट का खात्मा हो जाएगा। अजाफी चर्बी पिघल जाएगी, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। चावल, चीनी और चकनाइयों से मुकम्मल परहेज़ करें। सुबह की सैर अपना मामूल बना लें और अफाके करें। बगैर चीनी के चाय पीने से तो आपका दिमाग तेज़ होता है, मोटापे में कमी होती है। मोटापे के खात्मे के लिए 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच ज़ीरा भून कर पीस लें और हर खाने के बाद आधा चम्मच लें। वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा इंशाल्लाह। प्याज के साथ रोटी खाने से बढ़ा हुआ पेट अंदर जाना शुरू हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। खीरे का जूस पीने से आपका शुगर लेवल कम हो जाता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें आती हैं उस घर में आप लाजमी बकरी पालें और जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हैं वहाँ जादू जल्दी असर करता है। चेहरा काला पड़ने लगे तो दही की बिलाई चेहरे पर लगाएं, चेहरा दोबारा वापस होके वाइट हो जाएगा। अपने दिमाग को हमेशा तेज़ रखना चाहते हैं तो कभी भी पूरा पेट भर कर खाना ना खाएं। आधा गिलास पानी में 2 चम्मच ज़ीरा डालकर तकरीबन 5 मिनट तक उसको उबालें, फिर इसे छान लें और इसमें 2 चम्मच शहद और नींबू इस्तेमाल करें। फिर सुबह नहार मुँह पी लें। 1 माह में आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल आपके दिल की शरियानों को बंद कर देता है। गर्म दूध में ज़ैफ़रान मिलाकर पीने से सीने की बगलम दूर हो जाती है। सरसों के तेल में नीम के पत्ते जलाकर दांतों पर लगाएं, दांत का दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर दूसरों का झूठ पकड़ने में माहिर होते हैं। जो लोग जल्दी खाने के आदी होते हैं उनका पेट बाहर निकल आता है। हमेशा आहिस्ता खाने को चबा कर आहिस्ता खाएँ। जो लोग दिल में इंतकाम की आग रखते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बालों को लंबा और चौड़दार बनाने का नुस्खा: मेथी के बीज 2 बड़े चम्मच, सिकाकाई आधा कप, आंवला आधा कप, काली माश 1 कप और नींबू के खुश्क छिलके, इन सब को पीस कर सूप बना लें। सूप पानी में आधे घंटे भिगोकर बालों पर लगाएं। 5 मिनट बाद धो लें। हफ्ते भर में वाज़िया फ़र्क नज़र आना लगेगा। गुर्दे की पथरी के निजात के लिए रोज़ाना केला या इसका रस इस्तेमाल करें। नहाने के बाद सब्ज़ चाय पीने से जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। बदन में बेइंतहा ताकत लाने के लिए अनानास, खुबानी और किशमिश का इस्तेमाल करें। अगर किसी बच्चे को नज़र लग गई है तो 3 दिन तक बावजू हालत में सूरत फातिहा पढ़ कर दम करें। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ें।
इंशाअल्लाह अफाका होगा। इस दुआ के अव्वल और इस दुआ के आखिर में, शुरू में और आखिर में आपने दरूद पाक या दरूद इब्राहीम लाजमी पढ़ना है। मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करें, हर चीज़ हज़म हो जाएगी। अंजीर का इस्तेमाल फालज, घुटनों और जोड़ों के दर्द और शुगर से बचाव के लिए मुफीद है। नेकी और भलाई करने से इंसान के अंदर खुशी आती है और अल्लाह रिज़्क में बरकत फरमाता है। रात को दूध की बलाई चेहरे पर लगाकर सोने से चेहरे की छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। चेहरे पर अगर गैर ज़रूरी दबे हों तो दूध या बलाई लगाने से आपका चेहरा साफ़ और शफाफ हो जाता है। अगर जिस्म में दर्द है और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो 60 ग्राम भुने हुए चने लें, 1 गिलास दूध लें, 1 केला लें, 2 खजूरें लें, 5 से 10 बादाम की गिरियाँ लें और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उन सब का मिल्क शेक बना लें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह के वक्त ज़्यादा गर्म रोटी खाने से मैदे में गैस और मुंह में बदबू पैदा हो सकती है और खाना जल्दी हज़म नहीं होता।